एवरीवन, विंड्स ऑफ चेंज में आपका स्वागत है। आई एम हरिओम गुप्ता और आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स। इट इज न्यूली एडेड टॉपिक इन द गेट एंड AFC एग्जामिनेशन, and also in this topic we will analyze the structure on the basis of damped and undamped free vibration. So let's see. So our today's topic is structural dynamics. Structural dynamics. तो फर्स्ट टॉपिक ये है कि मैथमेटिकल मॉडल फॉर 1 degree of the freedom systems. We can see this system. We can see this freedom system in which a mass, a external force Ft, and a spring constant K, and a damping element C is C लगा हुआ है और this direction is y direction. So m जो मास है वो रिप्रेजेंट करता है, representing the initial characteristic of the structure, and K elastic restoring force or potential energy capacity of the structure, and C is damping element है. ये हमें याद रखना है कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, फ्रिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक एंड एनर्जी लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, एंड Ft इज ए एक्सटर्नल फोर्स. तो आवर फर्स्ट टॉपिक ये है कि अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ द फ्रीडम सिस्टम. वी कैन सी इन दिस picture 1 and picture 2. This is our picture 2, in which two systems are represented on the basis of undamped free vibration. So here a mass and K, or this is y direction. Here also a K and mass, and this is y direction in the downward direction. तो अनडैम्प्ड सिस्टम क्या होगा, जिसमें डैम्पिंग एलिमेंट नहीं लगा होगा, जहां पे फ्रिक्शनल और एनर्जी लॉसेस हम कंसीडर नहीं करेंगे और एक्सटर्नल फोर्स भी नेग्लेक्ट करेंगे. तो जो हमारा सिस्टम फर्स्ट है और फिगर फर्स्ट है और फिगर सेकंड है, वो एक ही तरह बिहेव करेंगे, इसलिए ये दे आर डायनामिकली इक्विवेलेंट होंगे. और जो हमारे बीच फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, वी कैन सी ऑन द स्क्रीन Fx equal to Ky. Also, in the case of a spring, we know that series spring में 1 upon K equivalent equal to sigma of 1 upon Ki. ये हम रिलेशनशिप पहले पढ़ चुके हैं, पर सीरीज स्प्रिंग्स कहेंगे किनको, we will see in the figure A and figure B. Figure A, in which this is the figure A, in which a beam and a spring is located. We can see in this figure A, and they are in series. Also in figure B, we can see जितना भी डिफ्लेक्शन हमारा इसके कारण, यानी जितना भी डिफ्लेक्शन इस बीम से होगा, उसी के सीरीज में ये स्प्रिंग लगी है. तो ये these both are the series spring. Now come to the parallel spring. Parallel spring में क्या होगा, this is the figure for the parallel spring, in which we know K equivalent equal to sigma Ki. तो ये parallel spring हो गई. Now come to the D'Alembert principle. ये प्रिंसिपल क्या कहता है, सिस्टम में बी सेट इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम state by adding the external force known as inertial force. यानी ये कह रहा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम कब होगा, जब हम उसके एक्सटर्नल फोर्स को, जो इनर्शियल फोर्स है, उसको ऐड कर दें. एक्सटर्नल फोर्स या इनर्शियल फोर्स को ऐड करके सिस्टम में हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बैठा सकते हैं. ये कहना है D'Alembert प्रिंसिपल का.
तो अनडैम्ड सिस्टम की एफबीडी देखेंगे कौन कौन से फोर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और इक्वेशन क्या है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज यहाँ पे सी अनडैम्ड सिस्टम में हम जानते हैं कि यहाँ पे सी यानी डैम्पिंग एलिमेंट भी नेग्लेक्ट होता है और एक्सटर्नल फोर्स को भी नेग्लेक्ट करते हैं। तो वी कैन सिंपली सी ए स्प्रिंग फोर्स KY होगा। तो M यहाँ पे वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तथा N यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अकॉर्डिंग टू D'Alembert प्रिंसिपल, a fictitious force or external force should be applied. This is a imaginary force. For the dynamic equilibrium हमें एक fictitious force या external force apply करना पड़ेगा जिससे system dynamic equilibrium में आ जाए। तो according to the D'Alembert principle, this is the equation for the dynamic equilibrium. For dynamic equilibrium, if we rearrange this equation, we can find this equation like this. Here y double dash is the acceleration and d square y upon dx square. It can be written like this, d square y. अब this is the differential equation of this equation is the differential equation of the second order. अगर इसके रूट कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट मींस अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म के हैं, तो इनका सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू ई अल्फा एक्स ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमें कॉम्प्लेक्स मिल गए, प्लस माइनस डब्ल्यू आई, डी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अपॉन एम आई, और इसको के अपॉन एम को हम डब्ल्यू लिख सकते हैं ओमेगा 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 विच इज नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन सी अल्फा, यहाँ पे e की पावर अल्फा एक्स जो था वहां पे अल्फा 0 हो गया एंड अल्फा 0 है यहाँ पे, और बीटा की जगह ओमेगा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये ओमेगा a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी। नाउ value of AB, this is the solution for this equation. Value of AB can be determined by boundary condition. जब boundary condition हम लोग लगाएंगे तो boundary condition क्या है हमारी, equal to at a t equal to 0, y equal to y naught and dy upon dx equal to b naught. के न्यूटन पर मीटर में होगा, m के जी में होगा। तो we will get a equal to y naught और b equal to v naught upon omega. On putting these value in first, we can get we can find the solution of this equation. Y equal to y naught cos omega t plus v naught upon omega sin omega t. Now we can see natural circular frequency which is represented by omega, और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम, और नेचुरल साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, दिस इज साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, और इससे पहले जो ओमेगा थी वो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी थी, और साइक्लिक फ्रीक्वेंसी का यूनिट होती है हर्ट्ज। तो साइक्लिक फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। टाइम पीरियड जो होता है 1 अपॉन नेचुरल साइक्लिक फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के, और हमारा जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे होगा ए इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट वाई नॉट का होल स्क्वायर वी नॉट अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर। अब हम इस जो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन इसमें एम्पलीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगी y अपॉन ए इक्वल टू वाई नॉट अपॉन ए कॉस ओमेगा टी प्लस वी नॉट बाई ओमेगा अपॉन ए
sin omega t. It can be written like this. You can see on the screen. अगर हम y नॉट बाई ओमेगा को sin अल्फा मान लें एंड v नॉट बाई ओमेगा अपॉन a को cos अल्फा मान लें, तो we can get this equation in the form of sin omega t plus alpha, where alpha equal to tan inverse y naught v naught by omega. We can see here. अब जो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू dy अपॉन dt, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, तो a ओमेगा साइन ओमेगा t मिलेगा. अब हम a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस अल्फा मिलेगा. फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी को मैक्सिमम करने के लिए, इस टर्म को मैक्सिमम करने के लिए cos ओमेगा t प्लस अल्फा इक्वल टू को 1 कर देंगे, देन v मैक्स हमें मिल जाएगा, v मैक्स इक्वल टू a ओमेगा. नाउ एक्सेलरेशन d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू dv अपॉन dt इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा t प्लस अल्फा. अब हमें अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो हम इस टर्म को साइन ओमेगा t प्लस अल्फा को 1 कर देंगे, तो व्हेन we will get acceleration omega square a. Now comes to the question. This question, ये क्वेश्चन जो है हमारा ESC 2020 में आया हुआ था. We will see the natural frequency of a mass m at the end of cantilever beam of negligible mass with the usual notation will be. तो देखिए हमारा एक कैंटिलीवर बीम है ये, और ये m मास लगा हुआ है. तो क्या पूछ रहा है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा की बात कर रहा है या साइक्लिक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है. तो ये f इक्वल टू, पहले देख लेते हैं इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा. तो यहाँ पे अगर कोई लोड P लगा होगा तो डेल्टा इक्वल टू TL क्यूब अपॉन 3EI हो जाए. ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी सोम में. ये डेल्टा इक्वल टू PL क्यूब अपॉन 3EI. अब K क्या होता है? स्टिफनेस क्या होगा? P अपॉन डेल्टा. तो ये हो जाएगा 3EI बाई L क्यूब. अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है देखेंगे, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये देखिए लिखा हुआ है F, ये तो टाइम पीरियड है, और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये दिया हुआ है ओमेगा अपॉन 2 पाई इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट K अपॉन M इक्वल टू 1 अपॉन, आप K की वैल्यू इसमें रख देंगे. K है 3EI बाई L क्यूब, तो ML क्यूब. तो हमारा ऑप्शन जो होगा फर्स्ट सही हो जाए. तो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, ESC 20 में पूछा गया था. तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इज लाइक दिस. अब अगला क्वेश्चन जो ये है, ये ESC 18 में आया हुआ है. ये सीरीज, आपको बताए थे कि इस टाइप के जो अरेंजमेंट होते हैं वो सीरीज कनेक्शन बनाते हैं स्ट्रक्चर डायनामिक्स में. तो हम देखेंगे कैसे करेंगे इसको. तो अगर ये सीरीज है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम shown in figure by neglecting the self weight of the beam is nearly. अब हमें इसे क्वेश्चन को करना है. तो फर्स्ट तो स्टिफनेस ऑफ बीम AB निकाल लेते हैं. तो ये KAB, और ऑलरेडी KS हमें पता है ऑलरेडी 1000 न्यूटन मीटर. So here is a stiffness of beam AB, KAB equal to 3EI by L cube. So it will be equal to 3EI is given 5000 kilonewton meter square. तो इसको न्यूटन में चेंज कर लेंगे. 5000 into 10 की पावर 3 and
3EI L क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब। तो इट विल बी इक्वल टू, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे देन वी विल गेट 187500 Newton per meter. And here Ks, we all know Ks equal to 1000 Newton per meter. These arrangement are in series. So K equivalent क्या होगा? 1 upon K equivalent equal to 1 upon KAB plus 1 upon KS. Now K equivalent equal to KAB into KS upon KAB plus KS. अब इनकी वैल्यू रख देंगे। KAB क्या है? 1875000 into KS 1000, KAB 1875000 plus 1000. Now it come to nearly equal to 1000 Newton per meter. ये हमारा K equivalent आ गया। K equivalent इक्वल है 1000 न्यूटन पर मीटर। अब हमें निकालना क्या है? फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड T इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K इक्वलेंट। सबकी वैल्यू रख देंगे। तो m हमारा यहाँ पे कितना है? m 50 kg है। तो 2 पाई अंडर रूट 50 अपॉन 1000। अब देखेंगे कितना आंसर कितना आ रहा है, कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा नियरली इक्वल टू 1.4 सेकेंड। 1.4 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ये ESC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। सो दिस इज गुड क्वेश्चन। सीरीज यानी सीरीज अरेंजमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले हमने देखा ये वाला क्वेश्चन भी सही था। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ द फ्रीडम। डैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ द फ्रीडम। तो इसमें क्या होगा? पहले वाले जब अनडैम्प्ड था तो हमने Ft जो एक्सटर्नल फोर्स था और डैम्प्ड एलिमेंट C को नेग्लेक्ट किया था। बट हियर डैम्प्ड कोफिशिएंट C जो होगा या डैम्प्ड एलिमेंट C होगा वो यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। तो पहला इसके जो डेफिनेशन है वो विस्कस डैम्पिंग है। इट इज assumed that damping force is proportional to the magnitude of velocity and opposite to the direction of the motion. This type of damping is called viscous damping. इन्होंने कहा है कि damping force जो होगा, damping force dF proportional to the magnitude of velocity means y dash के proportional होगा और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो माइनस वाई डैश हो जाएगा। तो dF इक्वल टू माइनस सी वाई डैश लिख सकते हैं या सी वाई डैश, कुछ भी हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई डैश एंड डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू सी वाई। सी इज डैम्पिंग एलिमेंट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और ये फ्रिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक और एनर्जी लॉसेस को दिखाता है। ठीक है, अब इसका एफबीटी बनाएंगे। पहले वाला एफबीटी हमने देखा था, उसमें सी ये जो था गायब था, सी को कंसीडर नहीं किया था, पर इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हियर वी सी एफबीटी जो है वो स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है के वाई ये यहाँ पे लग रही है, और सी वाई डैश ये हमारा डैम्पिंग फोर्स है। एम जी डाउनवर्ड लग रहा है पहले की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन जो है अपवर्ड की तरफ लग जाएगा। यहाँ पे भी हम अगर डी एलेम्बर्ट लॉ को फॉलो करेंगे तो हम यहाँ पे एक फिक्सिशियस फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जो डायनेमिक
इक्विलिब्रियम में सिस्टम को ला देगा। फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम ये फिक्सिशियस फोर्स लगाते हैं। तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो इसकी इक्वेशन इक्वल होगी, देख लेते हैं, के वाई सी वाई एंड एम वाई डबल डैश, के वाई सी वाई डैश एंड एन वाई डबल डैश, इनको जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, यानी ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं, इनको साथ में लिखेंगे तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देख लीजिए वाई डैश क्या है, वेलोसिटी है, पहले देख चुके हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई लिख देंगे। वाई डबल डैश एक्सेलरेशन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको डी स्क्वायर वाई लिख देंगे। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर having two real roots m1 and m2, solution of this differential equation can be written like this: y equal to c1 e की पावर m1x plus c2 e की पावर m2x। हमने पहले, ये रियल रूट्स हैं, यहाँ पे हमने पहले वाली जो इक्वेशन की थी वो वहां पे कॉम्प्लेक्स रूट थे, तो वहां पे y इक्वल टू e की पावर अल्फा x a cos बीटा x प्लस b sin बीटा x लिखी थी जब हमारे कॉम्प्लेक्स रूट होते थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसके रूट्स निकालते हैं तो P1 P2 हमारे ये रूट्स निकलते हैं। तो इसका जनरल सोल्यूशन हम लिख सकते हैं y इक्वल टू c1 e की पावर p1t एंड c2 e की पावर p2t। अब क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम, जब हमारे ये जो अंडर रूट में दिया गया पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हम इस सिस्टम को कहते हैं क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। तो हमारा जो ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास एक ही रूट बचेगा -c/2, ठीक, क्योंकि ये पोर्शन 0 ही हो गया और यहाँ पे केवल -c/2m बचा। तो जब इसको 0 करेंगे तो हम c को, जो हमारा डैम्पिंग एलिमेंट है, उसको CCR लिख देंगे, यानी C क्रिटिकल। तो C क्रिटिकल हमारा जो इक्विवेलेंट होता है, अंडर रूट यहाँ से निकल के आ जाएगा 2√km, और 2√km को हम अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे 2m ओमेगा n हो जाएगा इक्वल टू 2k ओमेगा n, वेयर ओमेगा n √km/m, ये हम जानते हैं। अब ओवर डैम्प्ड सिस्टम किन्हें कहते हैं? पहले हमने देखा कि जो क्रिटिकली डैम्प थे वहां पे ये जो अंडर रूट वाला पोर्शन था वो इक्वल टू 0 हो गया। नाउ ओवर डैम्प सिस्टम, ओवर डैम्प सिस्टम में ये जो अंडर रूट में होगा वो ग्रेटर देन 0 हो गए, तो यहाँ पे हमारे भी रियल रूट रहेंगे, रूट जो हमारे रहेंगे वो रियल ही रहेंगे, इसलिए यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन को। नाउ अंडर कम्स टू द अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम में क्या होगा, जो हमारा ये अंडर रूट वाला पार्ट है वो लेस देन 0 हो जाएगा, और लेस देन 0 हो जाएगा तो ये हमारे रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स रूट का सोल्यूशन हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जब ये 0 हो गया तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, और आयोटा IWD, अब -2/-c/2m प्लस -i ओमेगा डी। तो ये जो हमारा अंडर रूट पोर्शन है उसको हम ओमेगा डी कहते हैं, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम ओमेगा डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस ओमेगा डी क्या है, ये अंडर रूट वाले पोर्शन को हम ओमेगा डी लिख देंगे, और जो ओमेगा डी है उसको बोलते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, विच इज इक्वल टू k/m - c/2m का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इट कैन बी ओमेगा डी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड फॉर्म ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन होल स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन क्या है, डंपिंग रेशियो है, डैम्पिंग रेशियो है, वहां एप्सिलॉन डैम्पिंग रेशियो है, विच कैन बी रिटन एज C/CR, C/2 अंडर रूट डैम्पिंग, इज डैम्पिंग रेशियो। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि आप डैम्प फ्रीक्वेंसी के यानी बता दीजिए कितनी होगी, क्या होगा। अब देखते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये इस एप्सिलॉन को ओमेगा n से, तो ये हमारा C/2m के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो हमारा जो ये P1 P2 जो हमारे रूट थे, P1 P2
इक्वल टू माइनस सी अपॉन 2m प्लस माइनस आई ओमेगा डी, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, क्योंकि ये जो c अपॉन 2m है वो एप्सिलॉन इनटू ओमेगा इनके इक्विवेलेंट है, तो इससे भी लिख सकते हैं। नाउ हमारा जो जनरल सोल्यूशन होता है जब कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं तो y बराबर e की पावर अल्फा टी a cos बीटा टी, जब हमारा रूट अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होता है तब ये होता है सोल्यूशन b sin बीटा टी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा क्या है एप्सिलॉन ओमेगा n, यहाँ पे बीटा क्या है ओमेगा डी, तो इट कैन बी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, वी कैन सी ऑन द स्क्रीन, ऐसे लिख सकते हैं। और जब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो हमें a और b की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, b की वैल्यू ये होगी, a की वैल्यू, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस बिकम लाइक दिस। तो हमारा जो ये अंडर डैम्ड जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन इस तरीके से बन जाएगा, वी कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो ये मोशन ऑक्सिलेटरी है, नॉट पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या है कि एक ही ग्राफ एक टाइम पीरियड के बाद खुद को बार बार रिपीट करता रहे, बट ऑक्सिलेटरी क्या है, यहाँ पे ग्राफ देखिए जो है वो सेम ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हर टीडी के बाद घटता जाता है, तो इसके लिए ये मोशन ऑक्सिलेटरी होगा, नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है इसका एम्पलीट्यूड है उनमें डिक्रीमेंट होता जा रहा है, जैसे ही हम लोग यानी एक साइकिल आगे बढ़ते हैं तो एम्पलीमेंट में यानी डिक्रीमेंट होता जा रहा है। तो यहाँ पे डैम्प सर्कुलर फ्रीक्वेंसी हम देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डैम्प्ड साइक्लिक फ्रीक्वेंसी जो होगी एफ डी इक्वल टू डब्ल्यू डी अपॉन 2 पाई इक्वल टू ओमेगा एन 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 पाई, तो होल स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन 2 पाई। तो डैम्प्ड टाइम पीरियड यहाँ पे देखिए क्या होगा, टी डी इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा डी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन होल स्क्वायर। अब डैम्प्ड एम्पलीट्यूड देख लेंगे, एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, जो कोफिशिएंट हमने निकाले थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू ये एम्पलीट्यूड की आगे जाएगी। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो एम्पलीट्यूड में है एक डिक्रीमेंट सा है, और ये डिक्रीमेंट जो है लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होता क्या है, डिले इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का डिले इन एम्पलीट्यूड, दैट इज logarithmic decrement that is represented by delta, delta equal to ln y1 upon y2, y1 y2 क्या है ln y1 upon y2, ratio of any two successive peak amplitude, तो peak amplitude का जो रेशियो होगा उसे y1 by y2 से लिखते हैं। तो डेल्टा कैन बी ऑल्सो रिटन एट 2 पाई एप्सिलॉन अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन होल स्क्वायर। तो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग रेशियो, जो छोटी वैल्यू है डैम्पिंग रेशियो के लिए, उसके लिए एप्सिलॉन लेस देन 1 होगा, यानी बहुत छोटा होगा, इसलिए हम इस जो अंडर रूट में पोर्शन है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एंड डेल्टा कैन बी रिटन लाइक 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ कम टू द एन एग्जांपल, ये ESC 2017 में एग्जांपल आया हुआ था, तो इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। ए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ऑफ मास m दिया हुआ है, m इक्वल टू 22 kg, और स्टिफनेस दिया हुआ है के न्यूटन मीटर में चेंज कर लेंगे, न्यूटन पर मीटर में 17 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर वाइब्रेट्स फ्रीली इफ डैम्पिंग इन द सिस्टम इज 2%। डैम्पिंग इन द सिस्टम इज 2% मीन्स जो हमारा एप्सिलॉन दिया हुआ है वो 0.02 दिया हुआ है। ठीक है, नाउ एंड तो साइक्लिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है और डैम्प सर्कुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। साइक्लिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ डी,
और सर्कुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा डी। तो देखते हैं एफ डी क्या है। एफ डी हम लोगों ने देखा था ऊपर, देखिए ये देखिए एफ डी का फॉर्मूला ओमेगा डी अपॉन 2 पाई। एफ डी बराबर ओमेगा डी अपॉन 2 पाई इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होगी ओमेगा एन 1 माइनस एफ साइलेंट का होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई। अब ओमेगा एन क्या होता है, अंडर रूट के अपॉन एम। तो ओमेगा एम, सॉरी स्क्रीन ऊपर चली गई, ओमेगा एन हमारा जो होता है अंडर रूट के अपॉन एम। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम 1 माइनस एफ साइलेंट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एफ डी का फॉर्मूला हो जाएगा। जब वैल्यू रखेंगे ये सारी तो 1/2 पाई अंडर रूट 17 इंटू 10⁻³ अपॉन एम कितना है 22 kg 1 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4.4 है आ जाएगा। नाउ ओमेगा डी हम लोग जानते हैं, ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन 1 माइनस एफ साइलेंट का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा, जब वैल्यू सारी रखेंगे तो ये 27.8 आ जाएगा। देखिए के अपॉन एम, ओमेगा एन के अपॉन अंडर रूट के अपॉन एम होता है अपॉन 22 इंटू 1 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। तो ये 27.8 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। तो देखिए कौन सा 4.4 27.8, दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये ESC 2017 में डैम क्वेश्चन आया था